کو بتائیں کہ لاہور کی مردم شماری کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ شہر کی آبادی سالانہ 2.5% کی رفتار سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کمشنر لاہور نے مردم شماری کے اعداد و شمار بتائے ہیں۔ کیک کاٹ کر تمام آفیسروں کو مبارکباد دی ہے۔ دیکھیے عمران اکبر کی رپورٹ۔ لاہور کی مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا۔ شہر کی آبادی سالانہ 2.5% کی رفتار سے بڑھی۔ 5 برسوں میں لاہور کی آبادی میں 19,04,135 افراد کا اضافہ ہوا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع لاہور میں 3,11,522 ہاسٹلز اور مدارس ہیں۔ 2017 میں لاہور کی آبادی 1,11,19,985 تھی۔ کینٹ میں مکینوں کی تعداد 6,50,398 ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ میں 4,44,935 ہے۔ والٹن کینٹونمنٹ میں مکینوں کی تعداد 8,35,916 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تحصیل سٹی میں 41,78,465 مکین ہیں۔ تحصیل شالیمار میں نفوس کی تعداد 26,07,910 ہے۔ رائیونڈ کی آبادی میں سب سے زیادہ 34.91% اضافہ ہوا۔ تحصیل رائیونڈ میں نفوس کی تعداد 11,44,776 ہے۔ ماڈل ٹاؤن کی آبادی میں بھی 20.74% اضافہ ہوا۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں نفوس کی تعداد 32,64,172 ہے۔ محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ ضلع لاہور کی آبادی 1,30,04,135 نفوس پر مشتمل ہو گئی ہے۔ مردم شماری کا ٹارگٹ ایک چیلنج تھا۔ شہر کی مردم شماری میں کوئی گھرانہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے سینسس کا رزلٹ بہت اچھا آیا اور سینسس کا رزلٹ جو ہے وہ ویریفائی آیا۔ میں ان اساتذہ کو ضرور خراج عقیدت پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کی اور ہماری سینسس کو کامیاب کیا۔ لاہور کی آبادی اب ہوگی ہے 1,30,04,165 اور یہ 2.65 کا ہمارا گروتھ ریٹ ہوا ہے اور اس میں پوری کی پوری لاہور کی ٹیم اور پورے لاہور ڈویژن کی ٹیم اس کی مبارکباد کی مستحق۔ وفاقی ادارہ شماریات کے صوبائی انچارج ڈاکٹر سید وسیم نے اعداد و شمار کی تصدیق کی۔ مہنگائی نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا۔ شیخ اور انوش نے عوام کے ہوش اڑائے تو کنسٹرکشن میٹیریل بھی ہاتھوں سے گیا۔ تعمیراتی لاگت کے بپھرے ناگ نے میگا پروجیکٹس کو بھی ڈس دیا۔ لاگت کئی گنا بڑھ گئی، جبکہ لاہور کے کس میگا پروجیکٹ کی لاگت میں کتنا اضافہ ہوا، زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ دور حکومت میں کچھ بھی سستا نہ ہوا۔ تعمیراتی لاگت کے بپھرے ناگ نے میگا پروجیکٹس کو بھی ڈس لیا۔ لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ بڑھتی قیمتوں نے پہلے سے کمزور سرکاری خزانے پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کی بات ہو یا ایلیویٹڈ ایکسپریس منصوبہ، سب کے اخراجات بڑھ گئے۔ شاہدرہ ملٹی لیول گرڈ سیپریشن پروجیکٹ اور دیگر متعدد منصوبے مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس کا تعمیراتی کام شروع کرنے میں تاخیر افراط زر سے اس کا خرچہ بڑھ گیا۔ سیمنٹ، سریا، بجری اور دیگر متعلقہ تعمیراتی سامان کی ہوش و ربا قیمتوں نے رہی سہی کسر نکال دی۔ سی بی ڈی پنجاب نے کلمہ چوک پروجیکٹ کا پہلے MRS ریٹ پر PC1 بنایا جو 9 جون 2022 کو منظور ہوا۔ منصوبے کا تخمینہ 3,70 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ صرف 6 ماہ کی تاخیر سے منصوبے کی لاگت میں 1.25 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ کلمہ انڈر پاس کا ریوائزڈ PC1 4,94 کروڑ 75 لاکھ روپے کا منظور ہوا۔ کانٹریکٹ پر وقت ایوارڈ نہ ہونے سے لاگت میں 1,24 کروڑ 99 لاکھ روپے اضافہ ہوا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ انتہائی اہم پروجیکٹ مگر اس منصوبے کی ایک اینٹ بھی نہ لگی۔ منصوبے میں 100% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ لاگت 40 ارب روپے سے بڑھ کر 85 ارب روپے ہو گئی۔ 85 ارب کے LDA کے ایلیویٹڈ ایکسپریس منصوبے کی منظوری پنجاب حکومت نے دی۔ حال ہی میں شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کا تخمینہ 8 ارب 90 کروڑ 90 لاکھ روپے لگایا گیا۔ ریوائزڈ PC1 کے مطابق شاہدرہ منصوبے کی لاگت 9 ارب 75 کروڑ 30 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک سگنل فری کوریڈور 3 ارب 24 کروڑ 60 لاکھ روپے کا تھا۔ اب اسی سگنل فری کوریڈور کی لاگت 4 ارب 24 کروڑ 60 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ عبدالحق روڈ کی مرمت اور بحالی کے لیے 27 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اب عبدالحق روڈ پروجیکٹ کی لاگت 39 کروڑ 95,99 ہزار روپے تک جا پہنچی ہے۔ منصوبے پر بروقت کام نہ ہونے سے تعمیراتی لاگت میں 12 کروڑ 95 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ برکی روڈ توسیع منصوبے کی لاگت 40 کروڑ روپے سے بڑھ کر 59 کروڑ 72 لاکھ روپے تک جا پہنچی۔ منصوبے میں تاخیر سے لاگت میں 19 کروڑ 72 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ تعمیراتی لاگت میں اضافے سے سرکاری خزانے پر مزید کروڑوں روپے کا بوجھ پڑا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔
शहर भर में 3000 गैर कानूनी तामीरात, सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रहायशी तामीरात की निशानदही की गई, जबकि खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में 3000 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ, ऑडिट रिपोर्ट के एदादोशुमार में हेरा फेरी, सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शहर में शादी हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेज, मेहमान खाने गैर कानूनी तौर पर तामीर करवाए गए। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। दातागंज बख्श और समनाबाद जोन में 65 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। इलामा इकबाल जोन में 28, निश्तर जोन में 69 और गुलबर्ग में 13 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। शालामार जोन में 47, अजीज भट्टी जोन में 51, वहगा जोन में 50 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। रावी जोन में भी 57 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का इंकशाफ हुआ। 442 गैर कानूनी इमारतों को नोटिस जारी किए गए। 55 इमारतों को सील, जबकि 78 इमारतों के सिर्फ बलाई हिस्सों को मिसमार किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। 2 प्लानिंग अफसरों और 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को नौकरी से हटा दिया गया है। साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू किए गए वासा के मंसूबे वबाल जान बनने लगे। इलामा इकबाल टाउन के खैबर ब्लॉक में वासा ने सीवरेज लाइन बिछाकर काम बंद कर दिया। मरकजी शाहराह पर मट्टी के पहाड़ बन गए। वासा इंतजामिया की गफलत और अधूरे काम के सबब इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साबिक हुकूमतों में शुरू किए गए मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। वाटर सप्लाई और सीवरेज के तमाम जारी तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। वासा के शोबा ONM इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट की कोताही मंजर-ए-आम पर आ गई। वासा इंतजामिया ने वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा बनाया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए इलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में खुदाई की गई। वासा इंतजामिया मंसूबा अधूरा छोड़कर ही मौका से रफू चक्कर हो गई। मरकजी शाहराह पर मट्टी के पहाड़ बन गए। वासा इंतजामिया ने सड़क उखाड़ने के बाद उसकी असर-ए-नो मुरम्मत का काम ना किया। सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइप भी मरकजी शाहराह पर फेंक दिए गए। सड़क पर खुदाई होने के सबब मरकजी शाहराह सुकड़कर 10 फुट तक महदूद हो गई। वासा इंतजामिया की गफलत और अधूरे काम के सबब इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। वासा इंतजामिया का कहना है कि काम में सुसरवी पर कॉन्ट्रैक्टर की सरजनिश की। जल्द मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। LDA को सड़क की कारपेटिंग के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं। शहर की मरकजी शाहराह पर शगाफ पड़ने के वाक़यात की रोकथाम और वासा की भेजी गई समरी पर पंजाब हुकूमत का एतराज़। हुकूमत ने कसीर फंड्स देने से इनकार करते हुए लाइनों की तब्दीली के लिए तरजीहात मांग ली है। वासा ने दोबारा समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में 20 मरकजी शाहराहों पर शगाफ पड़ने के वाक़यात। वासा ने 20 मरकजी लाइनों की तब्दीली की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत ने वासा को तमाम लाइनों की तब्दीली से रोक दिया। हुकूमत की तरजीही लाइनों की तब्दीली की समरी भेजने की हिदायत वासा की जानिब से असर-ए-नो समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। वासा ने बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 6 अरब 55 करोड़ 77 लाख 45 हजार रुपए की इस्तदा कर दी। शहर लाहौर में 20 से जायद मरकजी सीवरेज लाइनों को खतरनाक करार दिया था। ताहम वासा ने तरजीही बुनियादों पर रवा माली साल 20 के बजाय 8 से तब्दीली की इस्तदा कर दी। 20 सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम 3 साल के अरसे में मुकम्मल करने की इस्तदा की गई। सत्तू कतला से अकबर शहीद चौक LMP ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन की लाइन को फिलफोर तब्दील करने की अपील। ग्रीन टाउन में अजमत चौक से हसन बसरी रोड तक सीवरेज लाइन को खतरनाक करार दे दिया गया। फैसल टाउन गोल चक्कर से निकलने वाली सीवरेज लाइन को तब्दील करने की इस्तदा। अमीन पार्क से मेन आउटफॉल रोड, कलियार और खुदा बख्श रोड गुलशन रावी की लाइनों के लिए फंड्स की इस्तदा की गई। वासा ने पंजाब हुकूमत से रवा माली साल में 5 अरब 26 करोड़ 26 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां जारी हैं। बाज़ारों में सब सलाली परचमों की बहार आ गई है। महंगाई के बावजूद बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और बुजुर्ग झंडे और बैजिस खरीदने में मसरूफ़ है। फ़ाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी को मिली जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में भी नौजवान, बच्चे, बूढ़े और खवातीन सभी सजावटी अशिया खरीदने में मसरूफ। गणपत रोड बाजार में झंडे, झंडियों, बच्चों के प्रिंटेड सूट, जश्न आज़ादी की मुनासबत से खसूसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बाजे और बैजेस के स्टॉल्स पर रश। बच्चियों और खवातीन के लिए सफेद और सब्ज रंग की चूड़ियां, हेयर बैंड्स, कैचर, कानों के झुमके, पोनिया और ब्रेसलेट, हर चीज सब्ज परचम की अक्कासी कर रही है। पिछले साल की निस्बत चीजों की कीमतों में 35 से 50% इजाफा हुआ है, लेकिन शहरी अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बावजूद जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। जिंदा कौमें आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। महंगाई बहुत है, लेकिन फिर भी हम अपनी जश्न आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। जिंदा दिलाने लाहौर का जोश और खरोश 14 अगस्त का देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मुहब्बे वतन कौम है और अपने यौम आज़ादी पर ये भरपूर जोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, इसके बावजूद रश कम नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला शुरू है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जश्न आज़ादी तकरीबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। तकरीबात में परचम कुशाई, इमारतों का सजावटी मुकाबला और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात का तवील सिलसिला शुरू। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने तकरीबात का शेड्यूल जारी कर दिया। राफिया हैदर कहती हैं कि जश्न आज़ादी तकरीबात में परचम कुशाई, इमारतों का सजावटी मुकाबला और भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। जश्न आज़ादी साइकिल रेस, मोटरसाइकिलों कार शो, फैमिली गाला और मौसीकी भी होगी। तकरीरी मुकाबला, मुसव्वरी की नुमाइश और खवातीन की तामीर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी होगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि फैमिलीज के लिए खुसूसी तौर पर लिबर्टी मार्केट में फैमिली गाला मुनक्किद किया जा रहा है। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को शायान शान आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। 14 अगस्त की शाम फुटबॉल स्टेडियम में मौसीकी मुनक्किद की जाएगी। अवाम से गुजारिश है कि तकरीबात में शामिल होने के लिए वक्त से पहले तशरीफ लाएं। जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाएं, बाहमी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखें। जश्न आज़ादी तकरीबात का सिलसिला आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी के मौका पर कैदियों की सज़ाओं में कमी का ऐलान। कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी गई है। उम्र कैद के मुजरिम 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द, ख़वातीन कैदी और 18 साल से कम उम्र के अफराद जो अपनी 1/3 सज़ा काट चुके हैं और वो सज़ाओं में कमी के फ़ैसले से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिम, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों की सज़ाएँ बरकरार रहेंगी, जबकि जना, चोरी, डकैती और अगवा, माली जुराइम और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों की भी सज़ाएँ कम नहीं होंगी। जश्न यौम आज़ादी की मुनासबत से नुमाइश का एहतमाम हमारे हीरोज़ के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, मेडल्स, डॉक टिकट्स नुमाइश का हिस्सा बने। इलामा इकबाल पर जारी होने वाले डॉक टिकट भी नुमाइश की जीनत बने। देखिए मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम LTA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन में यौम आज़ादी की मुनासबत से नुमाइश सजी। कौमी हीरोज़ के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, मेडल्स, अखबारात, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर जारी होने वाले डॉक टिकट्स और करेंसी नोट समेत दीगर नादिर चीज़ें नुमाइश की जीनत बनी। हॉकी के साबिक मायनाज खिलाड़ी सोहेल अब्बास की हॉकी और शर्ट भी नुमाइश का हिस्सा थी। मेंबर अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी साजिद अली ने नुमाइश के अगराज़ो मकासिद से आगाह किया। पाकिस्तान की वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ जिन्होंने, जिसमें डाक टिकट आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के क्वाइंस हैं, पाकिस्तान के करेंसी नोट हैं, पाकिस्तान के मेडल्स हैं और अहम मौके के ऊपर जो अखबारात शाये हुए हैं वो भी कलेक्शन का हिस्सा हैं। शहरियों ने नुमाइश को मालूमाती और शानदार करार दिया। इवेंट्स इस तरह के और बड़े लेवल पे होने चाहिए और स्कूल्स के अंदर होने चाहिए कि ताकि बच्चों में आगे मुंतकिल हों, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइलेटिस्ट होते हैं उनकी ज़िंदगियों तक की स्टैम्प्स उनके पास रहती हैं, उनके बाद आगे उनको मुंतकिल नहीं होती हैं, उनका नॉलेज नहीं होता, तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे भी होनी चाहिए, जिससे हर बच्चे को इस तरह की चीज़ों के बारे में पता लगना चाहिए। नुमाइश में LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। पोजीशन होल्डर्स हों या नुमाया नंबरों में इम्तिहान पास करने वाले तलबा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सबकी पहली तरजीह बन गया। लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 5 कैंपस में ओपन मेरिट और स्कॉलरशिप लिस्टें लगा दी गई। देखिए आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट।
इंतजार की घड़ियां खत्म। पंजाब कॉलेजेस में मेरिट लिस्टें लगा दी गईं। पोजीशन होल्डर्स समेत हाई अचीवर्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बनने की दौड़ में शामिल। तलबा और तालिबात को 100% तक स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। लाहौर के शालीमार कैंपस, मीनार पाकिस्तान कैंपस और सिटी कैंपस में दिन भर तलबा का रश रहा। कैंपस 8 और एयरलाइन कैंपस में पहुंचने वाले तलबा की तादाद भी हजारों में थी। तलबा और उनके वालिदैन मानते हैं कि पंजाब कॉलेजेस बेहतरीन तालीमी मुस्तकबिल की जमानत हैं। यहाँ पे लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, तो MD-CAT की तैयारी के लिए डेफिनेटली आपको पंजाब कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए। मेरे 1078 मार्क्स थे साइंस ग्रुप में और मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होल फैमिली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ी हुई है और मैंने प्री फर्स्ट ईयर नहीं ली हुई, लेकिन मुझे बाय सेल्फ खुद कॉलेज बहुत पसंद है। पंजाब कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल और एडमिशन हेड्स के मुताबिक तलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी और खेलों में टैलेंट की बुनियाद पर 100% तक स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। ई लर्निंग प्रोग्राम से तलबा को ट्यूशन की जरूरत नहीं रहती। रोबोटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पंजाब कॉलेजेस के अलावा किसी और इदारे में नहीं होती। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में बच्चे और वालिदैन आ रहे हैं, उनका इत्मीनाद है पंजाब कॉलेज के ऊपर कि वो अपने बच्चे को यहाँ ला रहे हैं। गहमा गहमी है, बच्चे अपना मेरिट लिस्ट देखने आ रहे हैं और अपना एडमिशन आज कंफर्म करवा रहे हैं और लातादाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। पंजाब कॉलेजेस में दाखिले का अमल मुकम्मल होने के बाद रवां माह से क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। यूँ तो महंगाई ने हर शोबा को मुतासिर किया, लेकिन PDM की हुकूमत में बुनियादी ज़रूरत गंदम की कीमतें बेकाबू रही। जाते जाते भी हुकूमत आवाम को महंगी गंदम का तोहफा देगी। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। PDM हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो 16 माह कबल 2300 रुपये मन वाली गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये कर दिया गया। मार्केट में गंदम सरकारी रेट पर आज तक कभी भी दस्तयाब नहीं हो सकी। अदम तवज्जुही और महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। PDM की हुकूमत ने गंदम के सरकारी रेट में 1600 रुपये इजाफा किया। ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 5200 रुपये को छू गई। 15 जून 2023 में गंदम का रेट 4800 रुपये फीमन तक देखा गया। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए फीमन मिल रही है। PDM दौर में गंदम की कीमत में 2400 रुपए फीमन का बुलंद तरीन इजाफा हुआ। जराये के मुताबिक हुकूमत की पकड़ धकड़ भी बेसूद रही। गंदम माफिया पर हाथ नहीं डाला जा सका। छोटे छोटे जिम्मेदारों के गोदामों पर छापे मारे जाते रहे। बाअसर जिम्मेदारों और आड़तियों के गोदामों की जानिब रुखी न किया गया। महंगी गंदम के बायस इससे जुड़ी दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान तक पहुँच गयी। नाकिस पॉलिसी की बिना पर 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं हुआ। साल 2023-24 के लिए सिर्फ 39 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो आइंदा दिनों में गंदम की फीमन कीमत 5000 रुपए से जायद होगी। महंगाई ने किसी शोबा को नहीं छोड़ा। अप्रैल 2022 से गाड़ियों की कीमत में 2-4 लाख का नहीं बल्कि 30 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इत्तेहादी हुकूमत ने खूब काम किया, हर तरफ महंगाई का राज रहा। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गाड़ियों की कीमत में 30 लाख रुपए तक इजाफा हुआ। टोयोटा यारिस 1.3 का रेट अप्रैल 2022 में 30,90,000 रुपए था। 14,72,500 रुपए महंगी होकर कीमत 45,11,500 रुपए तक पहुँच चुकी है। टोयोटा करोला 39,09,000 से बढ़कर 61,62,000 रुपए की हो गयी। 22,35,000 रुपए तक महंगी हुई। होंडा सिविक स्टैंडर्ड का रेट 30,50,000 रुपए बढ़ा। कीमत 55,49,000 रुपए से 85,99,000 रुपए तक जा पहुंची। होंडा सिटी 1.2 के दाम 32,64,000 थे। 15,35,000 महंगी होकर 47,99,000 रुपए की हो गई। सुजुकी आल्टो VXR की कीमत 16,75,000 थी। 9,39,000 महंगी होकर 26,12,000 रुपए की हो गई। सुजुकी वैगनार VXL अप्रैल 2022 में 21,29,000 रुपए की थी। इत्तेहादी हुकूमत में 12,83,000 महंगी हुई और कीमत 34,12,000 रुपए तक जा पहुंची। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती। फैक्ट्री रेट के अलावा हर गाड़ी का डीलर रेट अलहदा है और मजीद अदायगी करना पड़ती है। एक जानब रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, दूसरा बेलगाम LPG माफिया अवाम पेश गए। PDM ने 16 माह में गरीब शहरियों पर LPG बम भी तसलसल से गिराए। महंगाई के मारे अवाम को कभी LPG भी सस्ती ना मिली। ओगरा की जानिब से कुछ मरतबा कमी की गई मगर मार्केट में महंगी ही बेची गई। गैस माफिया आज भी मनमाने रेट्स लेने पर बाजिद। दीगर अशिया की तरह LPG की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। PDM हुकूमत के कुछ महीनों में गैस सस्ती तो की गई मगर ओगरा के रेट्स पर हुकूमत अमल दरामद ना करा सकी। 1 अप्रैल 2022 को LPG 13 रुपए किलो महंगी हुई। कीमत 247 रुपए थी लेकिन मार्केट में गैस 270
170 रुपए किलो तक फरोख्त हुई और किसी ने ना पूछा। मई में 15 और जून में 13 रुपए कीमत कम हुई मगर फिर 32 रुपए इजाफा किया गया। सितंबर में 6 रुपए फी किलो महंगी हुई मगर नवंबर दिसंबर में 14 रुपए महंगी की गई। जनवरी 2022 में भी उल्टी गंगा बहाई गई, कीमत 12 रुपए कम हुई लेकिन माफिया ने 50 रुपए बढ़ा दी। फरवरी में 60 रुपए और मार्च में 12 रुपए किलो LPG महंगी की गई। अप्रैल में 49 रुपए कमी हुई मगर माफिया ने कमी की बजाय उल्टा 10 रुपए कीमत बढ़ा दी। जून में 37 रुपए और जुलाई में 20 रुपए कमी हुई। अगस्त में 24 रुपए इजाफा हुआ। ओगरा की जानिब से LPG 201 रुपए किलो मुकर्रर है मगर LPG माफिया आज भी मनमानी करते हुए 250 रुपए फी किलो तक बेचने पर बाजिद है। ज़राए का कहना है कि चंद साल पहले मौसम गर्मा में LPG 120 से ऊपर नहीं जाती थी। 2 बरस से गर्मियों में भी LPG 200 रुपए से ऊपर बिक रही है। चीनी की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। एक हफ्ते में चीनी की 100 किलो वाली बोरी 800 रुपये मजीद महंगी होने के बाद 14,400 की हो गई। चीनी थोक मार्केट में फ़ी किलो 13 रुपये इजाफे के बाद 148 रुपये तक जा पहुंची। परचून में 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। चीनी की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता माह चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा भी कीमतों को ब्रेक न लगा सका। एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 13 रुपए का इजाफा हो गया। थोक मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 13 रुपए बढ़कर 148 रुपए हो गई। परचून की दुकानों पर फ़ी किलो चीनी 160 से बढ़कर 170 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। रवां हफ्ते चीनी की 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 800 रुपए मजीद इजाफे के बाद 14,400 हो गया। होलसेलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपए किलो थी। कीमतों में इजाफा जरूरत से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने से हुआ। शहरियों ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता 8 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका और कीमत 91 रुपए से बढ़कर 170 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चीनी, चावल और घी के दाम गैर मामूली बढ़ा दिए गए। शहरियों का हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं हुकूमत ने तो गरीबों को मार ही दिया है। GT रोड सुख नहर यूटिलिटी स्टोर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गरीब खरीदारों को इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा सरप्राइज। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, चीनी, घी और दालों के दाम बढ़ा दिए गए। सब्सिडी के नाम पर गरीबों से धोखा। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपए महंगा, कीमत 1281 रुपए कर दी गई। सब्सिडाइज घी 25 रुपए इजाफे के बाद 423 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी भी 55 रुपए बढ़ाकर 146 रुपए किलो कर दी गई। इसी तरह दाल चना, दाल मसूर और सफेद चना 20 रुपए फी किलो महंगे। सुपर बासमती चावल 10 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सस्ती अशिया खरीदने की उम्मीद में खड़े खरीदार नई कीमतें सुनकर सटपटा गए। कहने लगे ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 का, यहाँ पर 1300 का हो गया, तो क्या फर्क रह गया। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब पता चला कि कीमत डबल हो गई। जाते जाते हुकूमत ने अवाम को जहर दे दिया। देख जी कमान वाला है, तो पूरा करेंगे। आटा महंगा करता फड़ के इन्होंने, हर चीज महंगी करती है। गरीब आवाम मरती पई। सुबह 4 बजे से 5 बजे आन के बहनिया सानू की फायदा। हर एक चीज महंगाई है, चलो आटा दाना तो सस्ता कर दें। हम 5 बजे के आगे खड़े हैं यहाँ पे, लाइनों में धक्के खा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि 1350 का हो गया थोड़ा। आवाम भूखी मर रही है सड़कों पे। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सब्सिडी में भी रद्दोबदल कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज जुमा के रोज से कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नशे के आदी अफराद की बहाली और मंशियात फरोशी के सद्देबाब का पायदार प्लान तलब कर लिया। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए खसूसी सेंटर के क़याम का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। नशे के आदी अफराद की बहाली और मनशियात फरोशी के सदेबाब का पायदार प्लान तलब। नशावर अशिया बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए खसूसी सेंटर के क़याम का फैसला। ऐसे अफराद को क़याम ताम और इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। महकमा सेहत नशे के आदी अफराद की मुस्तकिल बहाली के लिए डॉक्टर, तिबी अमला और अद्वियात फराहम करेगा। महकमा सोशल वेलफेयर क़याम ताम और दीगर इंतजामात करेगा। पुलिस नशे के आदी अफराद की नकलो हरकत महदूद बनाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रायवंड रोड पर मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए खसूसी सेंटर को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत। शाम के भटिया में भी मनशियात से बहाली का मरकज कायम करने पर गौर। स्कूलों और कॉलेजेस में मनशियात फरोशी को हर कीमत पर रोका जाए। वज़ीर आला की पुलिस को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि मनशियात सप्लाई करने वाले बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इंसदाद मनशियात के मिशन
کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ANF اور دیگر اداروں کے اشتراک سے منشیات کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری اسلم گل کہتے ہیں کہ الیکشن 9 روز سے مہینہ آگے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ آئندہ الیکشن میں ملک بھر میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے۔ ہم سیٹوں میں اپنے ہی امیدوار کھڑے کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل نے کہا کہ 15 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کا حصہ بنی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کے مفاد کو آگے بڑھایا۔ آئندہ آنے والے الیکشن میں پاکستان کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جدوجہد کریں گے اور پاکستان کے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور وزیر اعظم پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ اسلم گل بولے، گزشتہ حکومت کی ناقص خارجہ پالیسیوں کے باعث چین، امریکہ سمیت دیگر ممالک سے حالات خراب ہوئے۔ چودھری اسلم گل نے بتایا کہ پارٹی کی جنرل کونسل کا اجلاس سینئر رہنما اور پارٹی کی بانی کارکن شمیم نیازی کی وفات کے باعث ملتوی کیا گیا۔ کیمرہ مین عمیر کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمات سے ڈسچارج کرنے کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد پنجاب حکومت کی درخواستوں پر 15 اگست کو سماعت کریں گے۔ پنجاب حکومت کی درخواستوں میں پرویز الہی اور متعلقہ کورٹ کے جج کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پرویز الہی کرپشن کے مقدمے میں ملوث ہیں۔ ملزم کو مجسٹریٹ کی عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن کا موقف نظر انداز کر کے مجسٹریٹ نے ملزم کو 2 مقدمات میں ڈسچارج کیا۔ ملزم کو تفتیش سے قبل مقدمات سے ڈسچارج کرنا خلاف قانون ہے۔ عدالت پرویز الہی کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کے مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار دے۔ اور اب آپ کو بتائیں، کمشنر لاہور DG LDA محمد علی رندھاوا کا LDA سٹی کا دورہ اسپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ہے اور کمشنر لاہور نے زیر تعمیر چناب روڈ کا بھی دورہ کیا ہے اور جناز سیکٹر میں جاری تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے اجلاس میں LDA سٹی کی بیوٹیفیکیشن اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ محمد علی رندھاوا نے کہا کہ چناب روڈ کے پل کی تعمیر کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ LDA سٹی میں 13 اور 14 اگست کو درمیانی شب آتش بازی اور لائٹ شو منعقد کیا جائے گا۔